मेरे हिसाब से 3 साल का तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, किसी कॉस्ट पे नहीं करेगा। भाई नेशनल जुडिशियल एकेडमी, आई कैन रिकॉर्ड माई ओन, इट्स नॉट वर्किंग टू द सेटिस्फैक्टरी। क्यों नहीं काम कर रही? देयर इज समथिंग रॉन्ग फ्रॉम देयर। वी जजेस इन द हाई कोर्ट और इन द सुप्रीम कोर्ट हैव टू रिकंसिडर एग्जामिन दैट व्हाट इज रॉन्ग। जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न चेंज होना चाहिए। ये जो हम रिटन एग्जामिनेशन होल्ड करते हैं ये बहुत ज़्यादा बुकिश है। नमस्कार दोस्तों, एमिकस पब्लिको LLP लॉ फर्म के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। It is our immense honor and privilege to welcome today a truly distinguished personality of Indian judiciary, Honorable Mr. Justice Ajay Rastogi, former judge of Supreme Court of India. Born in Jaipur, Rajasthan, Justice Rastogi began his illustrious legal journey in 1982, enrolling as an advocate and building a formidable practice in Rajasthan High Court with deep expertise in civil, constitutional, service and labor laws. Over the decades, his unwavering commitment to justice and legal excellence saw him rise through the ranks from being a respected practitioner to a judge of the Rajasthan High Court in 2004, later serving as an acting Chief Justice and thereafter as an Chief Justice of the Tripura High Court. In 2018, he was elevated to the Supreme Court of India, where he served with distinction until his retirement in June 2003 as one of the senior most judges in the court. During his tenure at the Apex Court, Justice Rastogi authored numerous significant judgments and contributed to shaping important areas of constitutional and civil jurisprudence, earning immense respect for his clarity of thought, balanced approach, and deep sense of judicial responsibility. Known for his integrity, intellectual rigor, and practical understanding of the legal system, his journey from bar to the bench stands as an inspiration to generations of young lawyers across the country. Today, we are especially privileged to have him with us to share his insights on a highly relevant and evolving subject. Bench strength begins at the bar, decoding the 3-year rule. Sir, it is a truly an honor to host you. We warmly welcome you to this conversation. Thank you very much. आज हमारे पास हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही कानून के क्षेत्र में बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं। अपने वकील के तौर पर और जज के तौर पर उन्होंने कई दशकों का अपना अनुभव शेयर किया है। समाज को जो सेवा दी है उसके लिए हम सभी आभारी हैं। और आज जिस विषय के लिए हमने उनको बुलाया है, जिसके लिए उन्होंने वक्त दिया है हमें, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जो कानून के क्षेत्र में जो भी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, जो भी लोग, उनके लिए जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है कि उनका एक सपना होता है कानून के क्षेत्र में जो जज बनने का। सिविल जज बनने के लिए जो परीक्षा देनी होती है उस पे जो ये परीक्षा आई है, फिर वो एक चर्चा का विषय बनी हुई है। और उस चर्चा का जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें एक दोबारा से जो भी सिविल जज की परीक्षा देना चाह रहे हैं उनके लिए एक अनिवार्यता रख दी है। 3 वर्ष की प्रैक्टिस की अनिवार्यता कर दी है। उसके बिना अब कोई भी व्यक्ति इस परीक्षा को देने में असमर्थ है। इस विषय पर हम आपका अनुभव साझा, आप जो भी अनुभव आपके हैं उनको हम साझा करवाना चाहेंगे और इस पे आपका जो व्यू है हम लेना चाहेंगे, ताकि जो हमारे यंग जो एडवोकेट्स हैं जो इसके लिए इच्छुक हैं वो इसमें आपका इस मार्गदर्शन का लाभ उठा सकें। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी लॉ एस्पिरेंट्स हैं दे आर डायरेक्टली कंसर्न्ड बिकॉज देयर competitiveness to appear in the judicial examination has been deferred by 3 years. Or everybody wants to know what will be the future of the view expressed by the Supreme Court. So first of all, I congratulate the entire team for selecting this topic and holding a discussion. आप देखेंगे, if we go to the history,
हमेशा जजेस ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। 92 के अंदर से पहले डिफरेंट स्कीम हुआ करती थी। आप देखेंगे पहले था कि प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको इंटर्न करना पड़ता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 60s एंड अर्ली। तो लॉ करने के बाद आपको एक साल का इंटर्न करना पड़ता था, देन यू आर एनरोल्ड एज एन एडवोकेट एंड देन यू कैन प्रैक्टिस। फिर वो सिस्टम गिव अप कर दिया, कहा कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा एंड वी आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स। जुडिशियल सर्विसेज में कभी भी इस तरीके के इम्पेडिमेंट नहीं हुआ करते थे। 92 में सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि विद द फीडबैक ऑफ देयर एक्सपीरियंस कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स इंडक्ट होते हैं इमीडिएटली ऑन देयर सिलेक्शन, दे आर फेलिंग इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम, और थोड़ी चीज चेंज की आवश्यकता है। आई एम नॉट सेइंग दैट सही था या गलत था, बट दे यूज देयर एक्सपीरियंस एंड दे इंट्रोड्यूस इट, and with their rich experience and with whatever the feedback they got, the Supreme Court thought that no, let us introduce 3 years of practice of a lawyer for becoming eligible. उसके बाद आप देखेंगे 92 के बाद शेट्टी कमीशन आया। शेट्टी कमीशन ने बहुत रिसर्च किया। शेट्टी कमीशन ने हर स्टेक होल्डर से बात की, उनका तजुर्बा शेयर किया, उनका एक्सपीरियंस लिया और फिर अपनी रिपोर्ट दी। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 3 साल के एक्सपीरियंस की लॉयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको इमीडिएट आफ्टर ऑन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ लॉ लेट हिम अपीयर, बट मेक योर अकेडमीज, गिव हिम ऑल काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड नॉलेज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन अकेडमी। और अकेडमी में आप साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जो भी आपको करना है आप करें, और अकेडमीज में उनको पूरा एनरिच करो सो दैट दे नो व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब दे हैव टू डिस्चार्ज। एंड अकॉर्डिंगली आप देखेंगे 2002 में ऑन द बेसिस ऑफ शेट्टी कमीशन रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अमेंडेड एंड आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू रीशफल एंड इंट्रोड्यूस permit all law students to appear in the examination. Now see the practical aspect. 2002 से कंटिन्यू था, अब 2026 के अंदर उन्होंने चेंज कर दिया 25 में। Let us take the complete journey of the system and see the practical aspect. Object to my mind is very laudable. They want experience, knowledge of the subject, confidence, integrity, uniformity in approach, and demand of the people, particularly when you're dealing with the rights of the people. A judicial officer discharges sovereign function, which can't be delegated. समाज का हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा मुकदमा या मेरा लिटिगेशन किसी एक्सपर्ट आदमी के द्वारा डिसाइड किया जाए। गलत नहीं है। टू माई माइंड यू हैव टू फाइंड आउट अ वे इन बिटवीन। इस ऑब्जेक्ट को अचीव कैसे करना है, दैट इज द क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट तो अचीव करना ही है, बट हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्ट, दैट इज द वे वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ यू हैव 2 ways. One way is let that student to continue for 3 years as a lawyer, under the impression within 3 years he will have that much of enriched experience of working, practical experience, knowledge of law, realities of the system, and confidence, which will work out. One thing. Second thing is to make him a judicial officer, give all kind of these inputs after he becoming a judicial officer, and then ask him to discharge duties after 2 years. What should be the better mode? So what my request first is, object to make a judicial officer in a pre-stage or a post-stage experience is the only question.
my request is, and my experience is, let us see the ground realities. आज की तारीख में when we have a standard of 10 plus 2 plus 3 plus 3 more if you want to do law, or 5 years after 12th, एक स्टूडेंट 24-25 साल पे आकर के लॉ कर पाता है. This is a normal schedule. And other students who qualify their graduation, they are eligible to appear in all the examinations, all competitions. Whether you want to become an IAS or a state services, you are qualified. You are asking the law to stuck for 3 years. Now for competition, everybody will agree with me that you need a academic excellence. You may have a practical knowledge, but in absence of academic excellence, you will not be able to compete and crack the examination. अब 3 साल का आपने से गैप दे दिया. 3 साल में he might have earned some practical experience, but he is not that effectively in touch with academics. So how he will qualify that exam after 3 years of his practical experience? And once you are not in touch with academics, it will be difficult to qualify. And something has to find out. My experience shows is that one has to collate all the things together. Those who do law, my experience is they are not interested in only coming into profession or doing judicial service. Major part of the students are those who appeared in competitive examinations, but they could not crack those examinations. Either it is IAS or state civil services. And since they are not able to crack those examinations, they are undergoing law grad with a bona fide belief that tomorrow they will be able to appear in one of the more examinations for which law is the minimum qualification. I think apart from the review, it needs a thorough deliberation. And when I am sitting with such young lawyers, I think your brain will work out what should be the norms and standard to be followed. सर एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा इसमें, जो प्रैक्टिस की जो कंडीशन रखी है, जो रिक्वायरमेंट की है, वो हर बार सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही हर बार बोल रहे हैं, 93 में भी, फिर 2002 में भी, उसके बाद 2025 सितंबर में भी, वो हर बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया. तो ऐसा सब क्या है ऐसा कि इसमें जो हमारे पॉलिसी मेकर हैं वो इस चीज़ को, इस पे कॉग्निजेंस नहीं लेके सुप्रीम कोर्ट हर बार इस चीज़ को देख रहा है कि प्रैक्टिस करवानी है या नहीं करवानी. इसमें कुछ हमें इसमें आप देखिए, यू आर राइट इन सेइंग दैट रोल इज ऑफ द लेजिस्लेचर, दे आर द मास्टर्स. बट ये बाय एंड लार्ज देखा गया है कि जजेस हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग particularly in the judicial side. Ordinarily no interference can be made. आप लॉ भी देखेंगे तो बड़ा क्लियर है, courts are always there to interpret the law. They can't make down the law. But when we deal with, particularly in the segment of judiciary, Supreme Court always steps in. I don't say whether it's justified or not justified, but they always interfere and step in with an object that let me make the system more better, more acceptable to the people. And apart from acceptability, with the rich knowledge the judges have gained by experience, by passage of time, let it be utilized for the better cause of justice. And that may be good for the reason that when we talk about administration of justice, legislature has its own role, but judges are also equally understand how the administrative justice can be resolved by taking this call at their own level. एक सर सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
आपका कोई पर्सनल सर आपका अनुभव रहा ऐसा जिसमें आपने देखा हो दोनों ही तरह के जो जुडिशियल ऑफिसर हैं, चाहे वो लोअर जुडिशियल से आए या एडीजे आए, उनमें जिनमें वो प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, इफेक्टिव प्रैक्टिस, रियल प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, और जो बिना प्रैक्टिस के आ रहे हैं, उनमें कोई आपने ऐसा अगर अनुभव किया हो जिनमें कोई डिफरेंस कभी देखा हो आपने? अगर आप मेरे से डायरेक्टली पूछोगे तो मैं ये कहूँगा कि चाहे आप जुडिशियल सर्विस में लें, चाहे आप एडीजे में लें, मेजॉरिटी ऑफ जिनके सिलेक्शंस होते हैं उनको प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं होता. दे माइट हैव बीन एनरोल्ड फॉर जुडिशियल सर्विस और दे माइट हैव बीन एनरोल्ड फॉर अपीयरिंग इन एडीजे, बट उनको जुडिशियल एक्सपीरियंस नहीं होता मेजॉरिटी को. दे आर गुड लॉयर्स ऑल्सो हु हैव बीन अपॉइंटेड एज एडीजे, बट मेजर सेगमेंट जो है उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन इज समथिंग डिफरेंट देन योर प्रैक्टिकल नॉलेज. एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर सिलेक्शंस नहीं होते, कंपटीशन के ऊपर सिलेक्शंस होते हैं. कंपटीशन के लिए आपको एकेडमिक एक्सीलेंस लेनी ही पड़ेगी, एंड दोज हु आर गुड इन एकेडमिक्स दे ओनली कैन क्रैक दीज एग्जामिनेशंस. पहले कभी एग्जाम्स नहीं हुआ करते थे. देयर वाज अ टाइम कि जुडिशियल सर्विसेज के लिए तो कमीशन थे. जो एडीजे के सिलेक्शंस हुआ करते थे फ्रॉम एडवोकेट्स कोटा टू एडीजे, देयर वाज नो सिलेक्शंस. The Chief Justice would call a lawyer and make a request that we want to make you an ADJ. And on his acceptance, he will become ADJ. That was the days we have seen. But धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ. आपके डिस्क्रिशनरी पावर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने लगा. You might be very bona fide in taking your discretion, but those discretions were not acceptable by the people. You might be very clear, you might be very strong, you might be very impartial in approach, but वो आपके decisions को public ने accept नहीं किया, आपके colleagues ने accept नहीं किया for good reasons. Then the examination system introduced for ADJ also. Now for ADJ also we'll find कि अगर मेरा experience है कि आज की तारीख में more than 50% of vacancy reserved for of ADJ from lawyers quota to ADJ are vacant. अगर आप राजस्थान का एग्जाम्पल लें, in the last 3 years, 4 years, when I was in Supreme Court, I was told that only 4 candidates qualify the written examination. Yes, sir. Yes. If 100 appear and 4 qualify the written examination, what kind of examinations you are holding then? अब मुझे पता है good number of lawyers have a rich experience of practical experience. They can work. But to crack academic excellence is different. It's required. मगर जब तक आप academic में excellence नहीं लेंगे, you can't qualify. And you can't qualify, you can't become a judge. तो दोनों को तो मीट कर ही नहीं सकते. तो सर जो कंडीशन इम्पोज होती है 93 में हुई, फिर उसके बाद में 2002 में फिर उसको बदल दिया, फिर 2025 में फिर से बदल दिया. तो सर ये क्या इसमें कोई प्रक्रिया हम देख रहे हैं जो जजेस जो कर रहे हैं इस वाली प्रक्रिया में, या फिर ये सर इस पे मानवीय स्वभाव का फर्क पड़ रहा है कि एकदम राइवल कंटेंशन सर आ रहा है? पहले एक बार मैं कंडीशन लगा दी, फिर उसको हटा दिया और अब फिर से सब लगा दिया. ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखिए सब अपने अपने एक्सपीरियंस से काम करते हैं, एंड नॉट ओनली एक्सपीरियंस बट दे टेक द फीडबैक, दे टेक इनपुट्स फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स. और हर व्यक्ति चाहता है कि मैं इस सिस्टम को बेटर कर दूं, कि कॉमन मैन का कॉन्फिडेंस बढ़े और डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस थोड़ा सा एक्सपेडाइट हो, or democracy in this country which is controlled and regulated by the judiciary must be upheld, and common man must feel confident that once I go to court justice will be done with me. इस ऑब्जेक्ट में कोई कमी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ना कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इसमें. बट द ओनली क्वेश्चन विच आई पुट टू माई सेल्फ ऑल द टाइम इज हाउ टू अचीव दिस गोल. मेरा मानना है कि हमको कहीं ना कहीं जाकर के जिनको हमने ये पावर दी है कि तुम सिलेक्शन करो,
उस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई सिस्टम एब्सोल्यूट नहीं है, Nothing. but you have to select which is the better one amongst the different systems, which will work out on ground with minimum of interference, human interference or the discretion. जहां तक सवाल है ऑल्टरेशंस का, शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, and if I go back to शेट्टी कमीशन's report, it is well reasoned report. So, और उस कमीशन ने बहुत इंटेंसली स्टडी किया, इनपुट्स लिए, स्टेक होल्डर से बात की, एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड दे ऑल्सो हैव ए रिच एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, एंड दे केम आउट विद ए स्कीम ऑफ एकेडमीज। एकेडमी जब आई थी, मेरा तो आज भी मानना है कि 3 years experience is not going to work on the ground at any cost. Make your academy strong. Give all kind of inputs in the academy. Let those who are selected, appointed as judicial officers, you concentrate on them. Provide them the best kind of knowledge. उनको आप प्रैक्टिकल नॉलेज दें, उनको आप थ्योरेटिकल नॉलेज दें, उनको आप कोर्ट रूम में बैठाएं, उनको आप डिफरेंट कोर्ट्स में दिखाएं, डिफरेंट स्टेट्स में ले जाएं. Take guidance from the academies which are for IAS and other services. Take guidance from the state academies which run for civil service, state civil services. अपनी अकेडमी को ठीक करें. बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है अकेडमीज में कि वी गो बाय सीनियरिटी. The senior judge will be the chairman of academy, senior judge will be the chairman of this. There should be no seniority. My request is that who have a potential, who have a taste in academies, who can have potential to do something, select him. Whether he is a serving judge or retired judge. उनको select करें, उनको entrust करें, do your job, and provide him all kind of infrastructure as he expect. मैं आपसे बात करता हूँ भाई नेशनल जुडिशियल एकेडमी. आई कैन से, आई कैन रिकॉर्ड माई ओन, इट्स नॉट वर्किंग टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल. क्यों नहीं काम कर रही है? देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर. वी जजेस in the High Court or in the Supreme Court have to reconsider and examine that what is wrong in the system of academies. आप बुला लेते हो जजेस को लेक्चर देने के लिए, उस लेक्चर से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उसका आउटपुट कुछ नहीं है. एंड आई हैव टेकन इंटरव्यू ऑफ फ्यू ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स आफ्टर सच लेक्चर सिस्टम वाज अडॉप्टेड. जैसे हमारे तो कुछ समझ में नहीं आया. समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि वो रॉ है बिल्कुल. जज बात करता है बड़े हायर प्लेटफॉर्म से, वो जो नया रिक्रूट है वो उस प्लेटफॉर्म पे चढ़ ही नहीं पाया अभी तक. तो उसको पता ही नहीं है कि प्लेटफॉर्म है क्या, कौन से प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, मेरे को मेरी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे लगेगी. आपको उनको लेना है जो लॉयर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे काम करते हैं. दोज आर गुड क्रिमिनल लॉयर्स इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दोज आर गुड सिविल लॉयर्स इन द क्रिमिनल कोर्ट, इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, दोज हु आर रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स who have a rich experience of working. Call them, ask them to give lectures on various subjects. हमको करना क्या है, हमको डायस कैसे होल्ड करनी है, हमको मिसलेनियस एप्लीकेशंस आती हैं कैसे डील करनी है. वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर देखें, उनके एक्सपीरियंस शेयर करें. क्योंकि उन डिस्ट्रिक्ट जजेस ने अपनी सर्विस फ्रॉम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू द डिस्ट्रिक्ट जज निकाली है. So they have 35 years experience. I put a question to myself. I don't have experience of working of a day even in the district court. I did my law, came into profession in High Court, become a judge. You can say a learned judge, went to Supreme Court, but I have no experience of working in the district court. If you ask me to teach and guide the students who are recruits in discharging their duties as judicial office in the district court, I'm sorry, I can't do it. Because I don't know the realities of the district working. उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनको कैसे डील कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को, वो डिस्ट्रिक्ट जज बता सकता है.
सीनियर जुडिशियल ऑफिसर बता सकता है, हम नहीं बता सकते। मगर हो क्या रहा है, वी जजेस आर कंसिडर्ड टू बी द लर्नड जजेस, गो फॉर लेक्चर्स in academies, in judicial academy, in the national judicial academies and other places. Either I am senior or I am a learned judge. To my understanding, this will not work. So we have to be practical in approach, rich or take experience of officers and lawyers. Lawyers का बहुत अच्छा experience होता है. I have dealt with I know lawyers. उनको अगर आप बुलाएंगे तो आपको ग्राउंड रियलिटी से टच करेंगे। वो उनकी 50 साल का एक्सपीरियंस है एज ए लॉयर ऑन द क्रिमिनल साइड। उन्होंने देखा है कि चालान पेश करने में क्या देखना चाहिए, जब आप चार्ज फ्रेम करती हो तो क्या देखना चाहिए, जब आप रिमांड देती हो तो क्या देखना चाहिए। वो टिप्स आपको जरूरी चाहिए, मैं नहीं दे सकता वो टिप्स। Even if I retired from Supreme Court, but you ask me to give tips, I can't give you those tips. But a lawyer who practices in the trial court, he can give you those tips. And those tips will be very much fruitful for a judicial officer. और वो आपको 3 साल के लॉयर के एक्सपीरियंस में नहीं मिलेंगी, वो आपको एज ए जुडिशियल, क्योंकि उस समय यू आर नॉट श्योर कि 3 साल करने के बाद मैं जुडिशियल ऑफिसर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। यू ओनली मेक मी एलिजिबल। जब मैं श्योर नहीं हूं कि मैं जुडिशियल ऑफिसर बनूंगा कि नहीं 3 साल के बाद, तो मैं काहे को पढ़ूंगा इस चक्कर में। हाँ, जब मेरे को आपने जुडिशियल ऑफिसर बना दिया, देन आई हैव ए मिशन in front of me. The mission is, let me do something better, something I should understand, because tomorrow I have to discharge those duties. So every word and every minute out of 24 hours I'll utilize only for to enrich myself in giving the best services as a judicial officer, जो आपको 3 साल का नहीं है। Let you interview those lawyers who have gone for 2 years as a lawyer, कुछ नहीं पता उनको। They're as safer as the young lawyer who has just completed law and joined profession. आगे तो देखें क्या करती है। तो सर एकेडमी में तो बहुत गुंजाइश है सर सुधार होने की। जुडिशियल एकेडमी है जो ट्रेनिंग दे रही है, उनमें तो बहुत गुंजाइश है सर। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है सर हमारा, जो जिससे हम रिक्रूट करते हैं, चाहे लोअर जुडिशियल हो, एडीजे हो, इनमें कहीं कोई आपको लगता है सर कि कोई सुधार होना चाहिए इसमें, या कोई डेवलपमेंट होना चाहिए इस तरह में, या जो अभी जो करंट जो प्रोसीजर है जिस तरह से, उसमें कोई सुधार की सर आपको कोई गुंजाइश लगती है इसमें? मेरे हिसाब से जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न चेंज होना चाहिए। ये जो हम रिटन एग्जामिनेशन होल्ड करते हैं जी, ये बहुत ज़्यादा बुकिश है, बहुत ज़्यादा बुकिश है, वो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉब्लम बेस्ड। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दो, लेट देम रिसर्च, गिव अ ओपन बुक, उसको किताब दो, क्योंकि सेक्शन तो मैं पढ़ सकता हूं। आज मेरे से कोई पूछे कि 294 सीआरपीसी क्या है, मुझे नहीं पता। I can see the book and read this section, but I should be, मुझे अगर प्रैक्टिकल आप प्रॉब्लम्स देंगे, माइंड क्रिएटिव होगा, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आई विल टेक एड ऑफ द पर्टिकुलर स्टैट्यूटरी सेक्शंस आल्सो, एंड आई विल इंटरप्रेट द सेक्शन में उन वे। चेंज ऑफ ये होना चाहिए। हम प्रॉब्लम बेस्ड सिस्टम नहीं रखते रिटन में, तो मेरा मानना है प्रॉब्लम बेस्ड रिटन रखें, और रिटन में उतना ही रखें जितना रिक्वायरमेंट है। हम दे देते हैं एकेडमिशियंस को चेक करने के लिए कॉपी, उनका माइंड सेट डिफरेंट है। वो सोशियोलॉजी की कॉपी की तरह सीआरपीसी कॉपी देखते हैं, चाहे हमारे जुडिशियल ऑफिसर भी हों। मगर हमको ये बताना पड़ेगा कि किस नेचर का एग्जाम लेना है, और कॉपीज को चेक करने में क्या क्या चीज रखनी है आपको ध्यान में। तो जो रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न है, टू माय एक्सपीरियंस एंड वर्किंग, इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट ओवरऑलिंग एट बोथ द लेवल्स, एट द एडीजे लेवल आल्सो एंड एट द एंट्री लेवल आल्सो। सर एज पर मेरा थोड़ा सा अलग है सर, बिकॉज मैंने एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर बहुत अपने को स्टैब्लिश भी किया, और बहुत
इंटर्नशिप भी दी है, बहुत कुछ। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर, इसी 3 इयर्स पे, कि प्रोसीजरल नॉलेज का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करें? बिकॉज सर मैंने जो शुरू में फेस किया था, बहुत शुरू में, बिकॉज मुझे बहुत पैशनेट वे में वर्क को शुरू किया, तो बहुत था कि अपना काम करेंगे, अपना काम, तो बहुत जल्दी काम लेने लग गए। तो जब हम लेके जाते थे सर, जो वहाँ 138 के केसेस, लाइक चेक बाउंस के, लाइक रिकवरी सूट्स के सर, सूट भी, प्लेन सूट्स भी, तो जब वहाँ पे, तो कई बार देखा जो एसीजेम्स के सामने अगर फाइल हो रहा है तो वो रीडर से पूछ रही हैं, रीडर साहब क्या है बताओ, फिर वो कर रहे हैं। तो वो हमको भी बुरा लगता था कि भाई आप जज की कुर्सी पे हैं नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये सर कि प्रोसीजरल नॉलेज का कैसे करेंगे? मतलब ये 3 साल आपके अकॉर्डिंग सर नहीं होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, या प्रोसीजरल नॉलेज का क्या करेंगे? मेरे हिसाब से 3 साल का तो सिस्टम वर्क नहीं करेगा, किसी कॉस्ट पे नहीं करेगा। और आप ये देखें, लेट अस सी, जिनको आज 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेट अस सेलेक्ट 50 लॉयर्स जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उनसे ही पूछो इंटरव्यू लोन का, ऑल 50, कि आज की तारीख में आपको क्या प्रैक्टिकल नॉलेज है। माई एक्सपीरियंस इज दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन वन, दे विल नॉट बी एक्सप्लेन टू वन फॉर 2 रीजन, फॉर वेरियस रीजंस। क्योंकि उस समय उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, ना उसको काम मिलता है, ना उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। क्यों? कि उसको ये पता ही नहीं है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं मेरी मंजिल कहाँ है। मंजिल की श्योरिटी हो जाएगा तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जब तक मंजिल की श्योरिटी नहीं होगी उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। आप चाहते हो कि वो 3 साल में एक लर्नर जज के रूप में तैयार हो जाए, नहीं हो सकता। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जब आप कुर्सी बैठते हो ना, सब सिखा देती है कुर्सी। बट मेरी रिक्वेस्ट यही है, अगर जज थोड़ा सा सुनने का मादा रखे, he is a good listener, understand the lawyer, hear him properly, take the issue with full open mind, no prejudices, no personal inhibitions कि ये गड़बड़ करता है, ये फलाना करता है, नहीं। Matter is before you, lawyer is presenting before you, hear him properly, give him some time to understand, you will understand the problem. हम काम करते थे जजेस, लेट मी पुट टू माई सेल्फ। आपने देखा होगा प्रैक्टिकली हाई कोर्ट में लॉयर्स सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करते हैं। कोई रिट्स में करता है, कोई सिविल में करता है, कोई क्रिमिनल में करता है, उसे करता है। अब क्रिमिनल का वकील जिसने प्रैक्टिस की वो भी जज बना, उसके सामने रिट्स लगती हैं। हम रिट्स से काम करते थे, हमको क्रिमिनल मिला, रोस्टर वो भी मिला। तो अब कोई कहे आपको तो क्रिमिनल काम ही नहीं किया हुआ, आपका नहीं किया हुआ काम हमने अपील भी डिसाइड की, हमने रिवीजन भी डिसाइड की। लॉयर्स में से ये इनको कहाँ दे दिया काम, इनको आता ही नहीं है क्रिमिनल। जैसे रस्तोगी has never worked on the criminal side, and I accept that I had not worked on the criminal side as a lawyer. But the only thing is, be open, listen the lawyer, give him due indulgence. उस लॉयर का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करो। He is not asking from you कि क्या करना है आपको, I want this thing to be done. He is not asking from you. He is only saying, listen me properly, examine the law, put that law into my facts and give a judgment. और वो धीरे धीरे आदमी सीखता है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं निकला है, सब समय सिखाता है। और जिस एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हो, सभी ने अपने इनिशियल टाइम में ये प्रॉब्लम फेस की है। I put on myself. जब हम जज बने और हमसे जजमेंट लिखाना था, खूब रिटें लिखाई थी, एक्सटेम्पोर 3-3, 4-4 घंटे की डिक्टेशन देते थे। मगर जजमेंट लिखाना पड़ा तो बहुत ट्रबल हुई, समझ नहीं आया कैसे चलना है, क्योंकि माइंडसेट नहीं था। एंड आई ड्राफ्टेड माय फर्स्ट जजमेंट, आई स्टिल रिमेंबर व्हाट वाज द सब्जेक्ट, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स आई डिसाइडेड। द सीनियर जज विद whom I was sitting, he said, अजय थोड़ा सा इसमें चेंज मांगता है। मैंने क्या चेंज मांगता है, इसको ऐसे ऐसे करो। He guided me. I said, yes, you are right. मैंने चेंज किया, उसके बाद जजमेंट प्रोनाउंस हो गया, वो निकल गया। मगर वो जजमेंट जब मैं 5 साल बाद मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये अगर मेरा नाम हटा दो तो it was difficult for me to accept it is my judgment which I dictated that time. So we all learn by experience and we commit faults.
and only by those faults we learn. तो जिस एक्सपीरियंस की आप बात करते हो, ये कुर्सी ही सिखाएगी आपको. ये वकालत से नहीं सीख सकते आप, कुर्सी सिखा देगी आपको. जब मेरे को श्योरिटी हो गई कि कुर्सी मेरे पास है, आई एम अ जुडिशियल ऑफिसर, आई विल बाउंड टू लर्न, एंड एट एवरी स्टेज आई विल लाइक टू लर्न. But you were asking me that you will be eligible after 3 years at the age when I'm 28 with no pocket expenses to earn and with no surety that I'll be a judicial officer. We are human beings, be practical. I can't devote that much of time which I can devote after becoming a judicial officer. So what I'm saying, I again repeat, I honor the object with which the judgment has come, but I don't agree with the conditions of eligibility which they are put in to make the system workable. The system will not work, and my view is it needs a relook to the system once again. Let the judges may examine once again, but it requires a relook. Otherwise, what will happen? 3 years there will be no selection. First, new entrants will not get entry because of they are lacking eligibility. And those who are eligible, they have already appeared early in the examination, could not succeed, and they alone are eligible. So you are now selecting people from those who are not able to crack the examination once or twice. So what kind of meritorious candidates are available to you in the market for the next 3 years? और होगा क्या इससे? बैकलॉग बढ़ जाएगा, वैकेंसी भर नहीं पाओगे आप. एक सिलेक्शन को हम कहते हैं साल भर में करो. प्रैक्टिकल स्पीकिंग एक सिलेक्शन में 2.5 साल लगते हैं, प्रोवाइडेड देयर इज नो स्टे. और आज के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है मेरा, सारे सिलेक्शंस कोर्ट में जाते हैं. चैलेंज तो होते हैं, चैलेंज होते हैं, बाय वे ऑफ, और किसी भी केस में स्टे हो गया बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, बिकॉज ऑफ दिस एनी आंसर शीट रॉन्ग, क्वेश्चन रॉन्ग, फलाना रॉन्ग, मालूम चला साल भर निकल गया. नाउ द सेकंड सिलेक्शन प्रोसेस व्हिच इज इन पाइपलाइन विल बी डिलेड बिकॉज दिस सिलेक्शन इज नॉट ओवर. Because those who will not be qualified, they will like to appear in the second selection, but they are not aware of what is the fate of my participation. And you can't hold the second selection because the first selection itself is very smoky. The problem goes on. तो आप इतना डिले कर जाओगे कि जो आप डेमोक्रेसी की बात करते हो इन जुडिशियल सिस्टम बिकॉज ऑफ पेंडेंसी, दिस पेंडेंसी विल बी लार्ज इन कमिंग 3 years. आज अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेंडेंसी समवेयर अबाउट 5 point something crore. And if this system is to follow in 3 years, it will cost 6 crores. Because you will not be able to fill the post. क्योंकि आज जो जुडिशियल ऑफिसर बना है वो एकेडमी में चला गया. वो 1.5 साल 1.5 साल के लिए एकेडमी में है, उसकी 1.5 साल बाद पोस्टिंग होगी, और आने वाले टाइम में कोई आपको जुडिशियल ऑफिसर मिलेगा नहीं 3 साल तक. तो आपके पास 50% और 40% वैकेंसी अनफिल्ड रह जाएंगी इन ऑल स्टेट्स. अगर 40% वैकेंसी अनफिल्ड रहेंगी तो हाउ यू विल केटर विद द इंस्टीट्यूशन? तो पेंडेंसी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और द हाई कोर्ट इज बाउंड टू इंक्रीज. मैं तो आई सेड वंस, व्हाई टू आस्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स? सुप्रीम कोर्ट फॉर द लास्ट 5 years is working with full strength. Hardly there is 1 vacancy or 2 vacancies in Supreme Court. Yes. When I came to Supreme Court in 2018, the pendency was somewhere about 63,000. Yes. Now it is 85,000. If Supreme Court is working with full strength of 34 or 33, Why? and this pendency day by day increasing, why it is increasing? So there is something wrong somewhere. But my view is you have to come forward, accept the realities, take inputs from all stakeholders, lawyers, other litigants, your brother colleagues who have earlier worked as judges of the court, either High Court or District Court or Supreme Court, wherever it is. Take their feedbacks, take their inputs, and then find out the way by which is possible. And my only request is, since you are taking particularly on of judicial working, my request is let the Supreme Court must concentrate on the district court pendency in the first go. Because a common man is only capable to approach the district court, not the High Court or the Supreme Court.
majority of institutions, the High Court and the Supreme Court, is kindly of affordable, economically sound, and influential people. But in district court, a man is downtrodden, no means of livelihood, economically not well, coming to court with the hope that I get some relief somewhere. Sir, actually, on this topic which we are here, the all young lawyers are there, and they are very fortunate because you are whatever you are answering, you are answering what they want to hear. So, Okay. but there's some questions they want to ask. Sir, my question is, I am 24-year-old female and I give a judiciary exam, first exam, then I got fail. But now the 3 years experience is required. So till then I will be 27. So we have family pressure to, social pressure to, for being a female. So I don't think so that I could able to give that exam again till the age of 27. So I am totally against this 3-year practice. नहीं, आपने अपनी प्रॉब्लम रखी. This is the problem, not yours. It's a problem of every female. Yes, definitely. Because in our social system, every family, your parents will pressure every female who comes to 25 or 26 कि शादी करो. They are not bothered कि what will be your career. शादी करो और हमारा पिंड छोड़ो. Then do whatever you want. But हमारी जो responsibility है, let us fulfill our responsibility and we do something. And now these things have to be kept in mind. In all judicial services, I'm sharing my experience from 2011 when Commission was holding these selections. करीब 55% 60% females की इस समय induction है Yes. judicial service. Yes. Now, if that is the percentage of induction in judicial service, and family background Indian culture में यही है, सबके साथ यही है. Now you have to correlate with the competition on one side, career next, family obligation third, and personal requirement fourth. Every female may or may not accept, but they also want that my marriageable age is 25, 26. I must be married in a respectable family. And at the same time, I want my own financial dependence. Now, all things can't run together. आप 24 पे आप क्वालिफाई करते हो, 3 साल का ब्रैकेट देते हो, 28 पे करते हो, you make me eligible at the age of 28. I'm not sure what will happen to me tomorrow. I'll able to crack or not able to crack. 29, 30 पे मेरा सिलेक्शन करते हो, age is retirement age is 60 years. 30 years I get. And my contemporaries who did only graduation, they did not do law. They join civil services at the age of 24. So you are lagging behind almost 5-6 years with them. And avenues of promotion and other are almost same. आज किसी कैंडिडेट को ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल सर्विस मिल जाए, no girl is going to come to law. Majority of them they appear in the civil services, but since they are not able to crack, they continue कि भाई एजुकेशन चलती रहेगी एंड लॉ दे देंगे, तो लॉ में निकल जाते हैं. और आई शेयर माई एक्सपीरियंस, फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वालिफाई करते हैं, they are not more than 20%. 80% are repeaters. 80% are repeaters. Either second, third. क्योंकि अपने यहाँ शायद मिनिमम वो नहीं है, शायद कितने अटेम्प्ट हैं? अटेम्प्ट नहीं है, अटेम्प्ट नहीं है ना, एज बार है, एज बार है. नाउ जनरल की 35 है, फीमेल की 40 होगी शायद, 38 हो गई कि 40 हो गई, 40 है. नाउ अप टू 40 तक यू कैन ट्राई, बट there's no future then. If you are selected at the age of 37 or 36, you have no future. When you join service, you are aspirant that my future must be taken care of. मैं ऐसा नहीं है कि मैं जुडिशियल ऑफिसर बन गया, जुडिशियल ऑफिसर से रिटायर हो गया.
And if I think that I'll be district judge or high court, there's nothing wrong in it. We are human beings. We must think for a better future in our life. गलत नहीं सोचते हम, और इसको मीट कैसे करना है? जितना गैप आप बढ़ाते जाओगे. नाउ माय रिक्वेस्ट इज, आई अगेन रिपीट, एक्सपीरियंस की जरूरत है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज लॉ की होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट काइंड ड्यूटी यू हैव टू डिस्चार्ज, सब चीज होनी चाहिए. मगर ये इनको कैसे अचीव करना है, दैट इज द क्वेश्चन. To my understanding, academy is the best forum. And I've seen officers after coming from academies. They are, I think, beyond expectation. I know large number of officers who had worked beyond expectation. But few instances you'll find कि अगर order गड़बड़ा गया, फलाना आ गया, उसको जो प्रॉब्लम थी उसको प्लग करने की कोशिश करो. उन ऑफिसर्स को आपको लगता है कि भाई ये टोटल हमारे पास 100 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, बट वी फाइंड 25 ऑफिसर्स आउट ऑफ 100 दे आर नॉट वर्किंग टू द सेटिस्फेक्शन. वी आर नॉट डाउटिंग देयर इंटीग्रिटी, वी आर नॉट डाउटिंग देयर नॉट कैलिबर, बट दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट फॉर गुड रीजंस. नहीं कर पा रहे. उनको एकेडमी में ले जाओ, गिव देम अ ट्रेनिंग फॉर 1 month, 15 days, and then put them back. Rather than putting a question mark on the entire cadre of officers, जो नहीं कर पा रहा है उसको फोकस करो, उनको एकेडमी ले जाओ, उनको ट्रेन करो, वापस पुट देम इनटू द मेन स्ट्रीम, हो जाएगा. सर, तो ये जो रिक्वायरमेंट आई 3 साल की प्रैक्टिस की, इसमें क्या सर ऐसा माने कि 2025 सितंबर में जब ये डायरेक्शन आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो जो आज का एस्पेक्ट है सर, आज के टाइम में जैसे पहले के टाइम में एलएलबी के साथ में कोई इंटर्नशिप का कोई प्रोविजन नहीं होता था, केवल एकेडमिक्स होती थी. वो साल भर बाद 3 साल का कोर्स होता था, उसमें वो एग्जाम दे के और वो डिग्री ले लेते 3 साल बाद. आज सेमेस्टर सिस्टम है, हर 6 महीने में 1 महीने की इंटर्नशिप मैंडेटरी कर रखी है. तो ये वाला जो फैक्टर है, ये जब 5 साल का जो लॉ में जा रहे हैं या 3 साल भी जा रहे हैं वो इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज वो पहले से लेके आ रहे हैं. ये वाला एस्पेक्ट सर क्या यहाँ पे कहीं पे मिस कर गया जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट है, या इस चीज को सर कंसीडर करते हुए भी 3 साल की रिक्वायरमेंट? अभी मेरे ख्याल से इंटर्नशिप इज नॉट ए पार्ट ऑफ करिकुलम. It is a part of करिकुलम. अगर करिकुलम का पार्ट बना हुआ है तो मैं समझता हूँ इंटर्नशिप तो सारे स्टूडेंट जाते हैं, सब प्रैक्टिकल करते ही है उसके अंदर. मगर इंटर्न्स मैंने देखा है इस वेरी एक फॉर्मल हो गया है, जैसे मूड कोर्ट होता है. I share my experience of moot court. Moot court is just like a replica of a court function. मैंने देखा एक जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें, अब मैंने देखा किसी ने लॉ टॉट्स की प्रॉब्लम दे दी, वो प्रॉब्लम इंडियन सोसाइटी में है ही नहीं, और उस पर आप चैट जीपीटी से उससे रिसर्च करके कर रहे हो, उसका कोई पर्पस नहीं है. When I went in moot court, I said, please don't give these problems. जो आपके यहाँ ग्राउंड में प्रॉब्लम्स होती हैं डे टू डे, जो कॉमन मैन फेस करता है, उसके प्रॉब्लम्स दो इनको. दे शुड रिमेन ऑन द ग्राउंड एंड टच द ग्राउंड रियलिटीज, रादर देन अब आर्बिट्रेशन करते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रॉब्लम देते हैं मूट कोर्ट में. उसने आर्बिट्रेशन का समझा ही नहीं अभी. आर्बिट्रेशन इज समथिंग क्वाइट डिफरेंट थिंग. तो आपको प्रॉब्लम जो है अगर मूट कोर्ट में मिले, जो रेगुलर प्रॉब्लम्स सिविल कोर्ट्स में चलती हैं, बेसिक इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, वो प्रॉब्लम्स दे, उसके ऊपर रिसर्च करें और उनको वो प्रॉब्लम सिखाएं कोर्ट में जाकर के, स्टूडेंट्स उस कॉलेज ले जाएं उन्हीं कोर्ट्स में. और मेरा मानना है आज भी आपको कि आप अगर इंटर्नशिप करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करें. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की इंटर्नशिप आपको हाई कोर्ट में काम आ सकती है, हाई कोर्ट की इंटर्नशिप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम नहीं आ सकती. वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. द रीजन इज हाई कोर्ट में ओरिजिनल वर्क नहीं है अपने यहाँ. दे आर 4 स्टेट्स वहाँ हाई कोर्ट में ओरिजिनल वर्क है, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता. पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के बाद हाई कोर्ट ले लेता है ओरिजिनल वर्क, बाकी स्टेट्स में नहीं है. नाउ हम लोगों ने क्योंकि दूसरी स्टेट्स में वर्क काम किया, हम लोगों ने ओरिजिनल काम नहीं किया. तो आपको ओरिजिनल वर्क की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है, सभी से, यंग स्टूडेंट से,
आप हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करें, जरूर करें, मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंपल्सरीली करें, विद लॉयर्स, विद जजेस, बोथ. देन यू विल कम टू नो हाउ द सिस्टम वर्क्स. और वो जो सिस्टम आप सीख के आएंगे वो आपको जुडिशियल एग्जामिनेशन में भी वर्क करेगा, और टू क्रैक दैट कॉम्पिटिशन में भी आपको बहुत साथ देगा. आपसे एक इंस्टेंस, हर ऑफिसर से पूछा जाता है कि वाई यू वांट टू बिकम जुडिशियल ऑफिसर. सबसे पूछते हैं, और सब पढ़ के आते हैं जहां आप कोचिंग करने जाते हो. हम भी पूछते थे, सब कहते हैं आई वांट टू सर्व द सोसाइटी. तो मैंने एक से कहा, मैंने कहा कि डू यू थिंक दैट ओनली आफ्टर बिकमिंग जुडिशियल ऑफिसर यू कैन सर्व, यू कांट सर्व एज ए लॉयर एंड यू कांट सर्व इन अदर कैपेसिटीज. कह नहीं सर, जुडिशियल ऑफिसर में क्या अच्छी तरह हो जाती है. कैसे? मैंने कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है जुडिशियल ऑफिसर में? मैंने कहा पैसे अच्छे मिलते हैं, तनख्वाह मिल जाती है अच्छी, गाड़ी मिलती है, क्लास थोड़ा स्टाफ मिलता है, प्रोटोकॉल है, हाँ प्रोटोकॉल मिलता है, तो कंफर्ट लेवल मिल जाता है, तो सर्विस हो जाती है. जहाँ कंफर्ट लेवल नहीं मिलता सर्विस नहीं होती. तो द स्टूडेंट वाज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है. मेरे को तो टीचर ने सिखाया नहीं है बात. मेरे तो कोचिंग में गया था, सर ने तो सिखाया नहीं. तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अल्टीमेटली इट इज सर्विस, अनडाउटेडली सर्विस, बट सर्विस विद डिग्निटी, सर्विस विद रिस्पेक्ट. हमको सर्व करना है, बट आई वांट टू सर्व विद डिग्निटी. I can serve in different capacities, no doubt about it. But to serve as a judicial officer, I'm still giving my service, but with respect, dignity, and independence. But ये देते हैं कि साहब मेरे को सोसाइटी की सर्विस करनी है. कोई नहीं, किसी को नहीं करनी सोसाइटी की सर्विस. जो जजेस बनते हैं हाईकोर्ट में, क्या सोसाइटी की सर्विस करने आते हैं? मगर कहेंगे सब यही कि हमको करनी है. सारे बैठे हुए सोसाइटी को सर्व करने के लिए. सोसाइटी को सर्व करता है ओरिजिनली, अगर देखो तो लॉयर करता है. बहुत स्ट्रगल करता है सर सोसाइटी को सर्व करने के लिए. उसको क्लाइंट की पल्स पता है, पल्स पता है, बहुत. उसने उसका दर्द देखा है, उसकी प्रॉब्लम को बहुत नजदीक से समझा है. और इसीलिए जब हम लॉयर्स हाईकोर्ट में जज बनते हैं, those who carry that kind of a vision with them, जो उन्होंने लॉयर एज ए लॉयर वो देखी है, they are successful persons, they are become successful judges. और जिन्होंने वो सीढ़ियां नहीं देखी, they are judges. But I'll say एक satisfaction जो होता है end of the day, if I put a question to myself on the end of the day कि what kind of a service I rendered, I feel satisfied that what is possible with me, I did it, and I'm satisfied. Not because I get all ghoda gaadi and everything. I'm satisfied. तो सर्विस करने के तरीके अलग अलग हैं, सर्विस सब करते हैं. हाँ. So we are really fortunate, sir, that you have shared and the clear-cut view that ki as on date you all are very fortunate that sir is here, that 3 years practice is not mandatory. It should not be. Should not be because it won't work. It will not work on the ground. It will not work. It will not. I'm sure about it. It is not going to. And Shetty Commission's report, if you read the Shetty Commission's report, Sir. they have extensively considered the views of various stakeholders. Sir. आज भी वही चीज है, litigation वही है, requirement वही है, demand वही है, expectation वही है. Nature of litigation change हो गया, बस, और कुछ चेंज नहीं हुआ. तो शेट्टी कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आज भी ग्राउंड पे वर्क करती है. और शेट्टी कमीशन ने कहा था एकेडमीज को इम्प्रूव करो, एकेडमीज को साल भर का, 1.5 साल का, 2 साल का आप करें अपना जो भी आपको करना है. और एकेडमीज की बात एस्टेब्लिश हुई, मगर एकेडमीज को मॉनिटर ढंग से नहीं किया. और हमने सीनियरिटी के चक्कर के अंदर सबको बनाते गए चेयरमैन ऑफ एकेडमीज विदाउट नोइंग इट वेल. इसका इंटरेस्ट है कि नहीं है? तो हमको सीनियरिटी का जो सिस्टम है वो खत्म करना पड़ेगा. And make a person to work in academy who has original taste. Even if he is not a serving judge, make a chairman of academy a retired judge.
who has a zeal to work. और मैं समझता हूँ सारे रिटायर्ड जजेस को करना चाहिए, so that जो सर्विस जजेस है, सर्विंग जजेस, उनके पास काम बहुत है. Because you have 24 hours. If you do all these kind of work, and ultimately the judicial work suffers. Give to the retired judges who are interested in doing. Give them a chance. System will work. और lawyers को और judicial officers को, जो ओरिजिनल साइड में काम किया हुआ है, इनको सबको अपॉर्चुनिटी दो, ना कि हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस से भाषण करवाओ. मैं इसके फेवर में नहीं हूँ. Anyone have any question for sir? Sure. On the subject of overall personality and confidence, in a recent Supreme Court view, they said that we want more mature person in the field. So what's your take on this? More mature person? Yeah, more mature person in the field. They have mentioned in their recent In the judgment? views. Yeah. 3 years? Yeah, yes. So what's your take on that, since we are You all over the subject of maturity, to my understanding, is a very vague term. A man of 50 years is not matured. But a man means, I'm not taking gender equality is there. A man of 25 is mature. So maturity is a very wide term. You can't define maturity. Maturity comes by circumstances, by nature of work. And when you get confidence, it comes maturity. Maturity is not in isolation. You will find persons working in a particular field for 15 years but still not mature. But a man worked for 5 years and is matured. Maturity in the sense, he knows what is my job. I'm talking about maturity there. Not maturity by age. 18 years, 21 years, I'm mature. No. Maturity in profession you are working. You will find, आप घर में भी देखोगे कि बड़े तो हो गए मगर maturity नहीं आई. आपसे कोई पूछे इसको परिभाषित करो, डिफाइन करो, you can't do it. But you find he is not mature. आप कहते हो अपने घर में कि भाई ये mature नहीं है, क्योंकि बातें बड़ी सिली करते हैं, उसका सिर पैर नहीं होता है, लॉजिक नहीं है, बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं है, सब्जेक्ट की ब्रीफिंग नहीं है. These are the gradings of having maturity. Or maturity, to my understanding, will always come when you work. When you work in profession, in whatever capacity, with devotion and dedication. And last but not the least, the commitment. Maturity is bound to come. Bound to come. But maturity to correlate with my 3 years working to being mature, no, I don't agree. 3 years of advocacy is not going to make a man mature. Even if you 10 years into profession, you can't be mature. और आप पकड़ लोगे mature नहीं है, but आपसे कोई define करो, why according to you is not mature, you can't define. But you can finally, you can give your conclusion कि maturity नहीं है. That is the way. So I don't agree with this term maturity correlated to 3 years of law. This is my personal view. Somebody may agree, may not agree with me. But my personal view is this. So in that judgment, maturity is also so it is completely in favor of you all young lawyers. Yes, मैं तो आज भी I want the young blood to come. Sir. They have to take a baton, take it forward. Judiciary is waiting for all of you. Future. And yes, you are the future of the country. Sir. You are the future of the nation builder. And judiciary is waiting for the newcomers to join. And you are not knocking the doors of judiciary. Judiciary is knocking the doors of a new generation to come forward, take this task and take it forward and do justice with in whatever capacity you serve. एकेडमिक्स तो आपको कॉम्पीट करने के लिए, क्रैक करने के लिए तो एकेडमिक्स करनी ही पड़ेगी एक्सीलेंस. मगर क्वेश्चन ये है कि जब तक मेरे को फ्यूचर सिक्योर नहीं करोगे, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा. आई हैव सो मेनी फोर्सेस बिहाइंड मी, लाइक यू सेड. मैं उन फोर्सेस को सबको
corner करके I'm taking a step forward, keeping in mind that I'll be able to crack. Whether I'll do it or not, something different. But let me focus to crack the examination. It's a very difficult challenge. But अभी तो मैं बिल्कुल डार्क में हूँ. जब आप मेरे से कह रहे हो एक्सपीरियंस लो, आई मीन कंप्लीटली डार्क. मेरा फ्यूचर मुझे पता ही नहीं है. 3 साल आपने अगर मेरे से कहा कि काम वकालत करो, 3 साल में एकेडमिक भूल गया. फिर आप कहते हो एकेडमिक किताब वापस उठाओ और पढ़ो. फिर मैं ट्यूशन करने जाऊंगा वहाँ, जो आपकी कोचिंग क्लास चलती है. और मैं आपको आप बताऊँ, स्टूडेंट्स मना करते थे हमको कि हमने कोचिंग नहीं ली. 100% कोचिंग लेते. माई एक्सपीरियंस इज 100% कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करके आते, बाकी का को नहीं पता, कोचिंग लेते. नाउ हाउ फार कोचिंग इज प्रॉफिटेबल और हाउ फार कोचिंग इज रियली कम टू योर रेस्क्यू, आई डोंट नो, बट कोचिंग लेते हैं सब. बट आई स्टिल टेल यू, वकालत में थोड़ी देर जरूर लगती है, बट स्काई इज द लिमिट. Sir, Sky. I wanted to say from the very beginning, sir, as Sky is the limit. sky is I'll tell you, I came in profession in 82, litigation is a very and I'm the day one in litigation. और मैं 82 में वकालत में आने के बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी. देखा ही नहीं पीछे. और God was kind to me that every day I was sharing practice throughout of my practice. God has given much more than I had ever expected for myself. मेरे को लगता नहीं था मेरे जैसे भी ऐसे कर सकते हैं. But I'll still tell you, जिस लिबर्टी की आप बात करते हो, जिस ओपननेस की आप बात करते हो, which about expression, free expression, वो आपको जो लॉयर को मिलता है, वो नहीं मिल सकता. There are so many challenges for females. I admit, but still, वो नहीं मिल सकता. When you're a judge, you have to be very, very guarded. Your every word which you speak has a value. It can be interpreted, misinterpreted by people. It can be misused for various reasons. One has to be very, very conscious while making statement open or in your judgment. But that is not the principles applicable to lawyer. He's a freelancer. He can say what he think. no restrictions. Sir. Judge can think but can't say what he think. That, and nowadays media is very strong. Sir, Social media is very strong. आज की तारीख में जजेस कोर्ट में नहीं बोलते हैं. For this reason, I don't know how the media will respond to it. कहाँ से क्या उठा How social media will take half this side, half that side, Sir. and they'll make new sentence. sir. And you will yourself not be able to examine कि मैंने यही बोला था क्या. इसलिए आप देखा होगा जब से सोशल मीडिया सिस्टम चला है, जजेस आर वेरी कॉन्शियस इन मेकिंग देयर ओपन स्टेटमेंट्स. ये हो रहा है, बट दिस इज नॉट गुड. End of this podcast, sir. We are really grateful and say thank you to you that you have shared so many your thoughts, your experience, your real experience to the young lawyers at least. And they all are young lawyers which are sitting before you, sir, and they are very happy after hearing. I'll not say young lawyers, I'll say upcoming lawyers. Upcoming judicial officers, we cannot say, sir, due to this 3 years, but we can say the upcoming lawyers. Yes, sir. So I really thanks, sir, and we just appreciate that you have accepted our invitation and you are here. Our office is blessed, sir. This Amicus Publico LLP office is blessed. Really, it's very fortunate, sir. I'm so thankful of giving me this opportunity. Sir, no word. To address and to share the views of the upcoming lawyers also. Yes. And you both. Sir. And my good wishes to all.